Hello students, welcome to your English class. Today we will start second unit, first poem, vocation. Students, vocation means what? It is a profession or occupation we may say, or you can say that the work that a person undertakes which gives him a great happiness and fulfillment, but at the same time it demands special commitment and dedication. That is what known as vocation. We can understand it more precisely that if you will do something for the good of the society to help someone, that profession or work is also known as vocation. Okay? So here the poet describes a child's immense desire and yearning for freedom that he sees in the lives of the people working around him, unaware of the hardship that these people face. हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है ना कि उसको ऐसा लगता है दैट उसकी लाइफ जो है वो इट इज़ फुल ऑफ बर्डन्स, सॉरोज एंड हार्डशिप. ही फील्स दैट दूसरे जो है वो क्या है उससे बहुत बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं. तो यहाँ पर जो बच्चा है वो भी अपने सराउंडिंग में जो वेंडरर्स होते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग से जो है वो देखता है कि अलग अलग वेंडर्स और अलग अलग जो ऑक्यूपेशन के लोग जो होते हैं जो उसकी सराउंडिंग में हैं, ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग दैम एंड व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही फील्स, ही शेयर ऑल दिस थिंग इन दिस पोएम. द पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो हियर वी स्टार्ट विथ अवर पोएम. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawkers crying, bangles, crystal bangles. Here, the child is sharing his experience, daily experience, that at the early morning at 10 when gong sounds. So gong is a flat metal bell rung to draw the people's attention. Mostly in schools also, earlier in schools also, this type of flat metal was used for bell. Now it is electric bells. Electric bells are used in the schools also, but earlier these gongs were used at many places just to draw the attention of the people. Okay, so जब 10 बजे का जो है gong बजता है early morning and the 10 o'clock is the timing of the school of a child. So he walked to school by our lane. So what he observed, every day I meet the hawker crying. हर दिन क्या होता है, वो एक हॉकर को देखता है जो उस 10 बजे की गॉन्ग के टाइम पर जो है वो उसके पास से पास होता है. He was crying. Crying here means shouting out aloud. What he was crying, what he is shouting? Bangles, crystal bangles. That means the hawker was selling a bangles. Next, what he observes, there is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. वो ऑब्जर्व करता है कि वो हॉकर जो है वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है, उसे कोई हरी नहीं होती जल्दी पहुंचने की. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ए स्कूल स्टूडेंट, सो ही मस्ट रीच ऑन अ टाइम. इफ़ द स्कूल टाइमिंग इज़ 10 o'clock, दैट मीन्स ही मस्ट रीच 10 o'clock. अदरवाइज ही विल बी गिवन विद अ पनिशमेंट. But if he observes this venderer or this hawker, so he just observe that उसे कोई हरी नहीं होती, उसे कोई टाइमिंग नहीं होता फिक्स कि उतने टाइम पर ही उसे कहीं पर पहुंचना है. ही मस्ट इवन उसे कोई कंपल्शन नहीं होता कि उसे इसी रास्ते पर जाना है, उसे ये भी कंपल्शन नहीं होता है और इसी प्लेस पर रीच करना है, उसे यही उसका डेस्टिनेशन है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट द कंपल्शन टू हिम. दैट मीन्स he feels that whatever obligations are there that are what imposed on that boy only, that means उसे एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना है और सेम वे फॉलो करना है, अपने एक डेस्टिनेशन है स्कूल का, उसको वहाँ पर प्रॉपरली रीच करना है, उसी रास्ते से उसको डेली गुजरना है. तो उसे लगता है ये सब क्या है, उसके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज है, ऑब्लिगेशंस है, दैट मीन ही मस्ट नीडेड टू डू दैट. बट इन कंपेयर टू दैट हॉकर इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. आई विश आई वर अ हॉकर spending my day in the road, crying, bangles, crystal bangles, when at 4 in the afternoon I come back from the school. यहाँ पर जो है बच्चा क्या कहता है, वो सोचता है कि काश मैं भी क्या होता है एक हॉकर होता
मैं भी अपना पूरा दिन जो है रास्ते पर घूमते हुए निकाल देता, मैं शाउट करता बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स। मतलब वो देखिए उसमें भी जो है वो उसमें क्या फ़ील कर रहा है, एन्जॉयमेंट फ़ील कर रहा है, उसको लग रहा है कि रास्ते पर घूमना फिरना और शाउट करना बेंगल्स ले लो, ये सब क्या है, बहुत इन्जॉय वाला है, बहुत एडवेंचरस है उसके हिसाब से। और शाम में जब 4 बजता है तो मैं आराम से क्या करता है, स्कूल से जो टाइम पर अपने घर आता हूँ, मैं आराम से, मुझे स्कूल से डेली 4 बजे घर आना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ मस्ट, मुझे उतने टाइम पर घर पहुँचना है। बट हियर ये हॉकर के लिए कंपल्शन नहीं है कि उसे 4 बजे ही घर पहुँचना है। सो हियर ही विश दैट, वो सोचता है कि काश मैं भी क्या होता एक हॉकर होता, जो मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करता। हियर नेक्स्ट वन, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. He does what he likes. With his spade, he soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet. अब वो नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस जो वो डेली ऑब्जर्व करता है उसे शेयर कर रहा है कि वो क्या ऑब्जर्व करता है। आई कैन सी थ्रू द गेट, वो अपने गेट से देखता है डेली, दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, कि किस तरह से जो है वो गार्डनर ग्राउंड को डिग करता है। ही डज़ वॉट ही लाइक्स, जैसा उसे काम करना है वो उस तरह से करता है। विथ हिज स्पेड, स्पेड इज़ अ टाइप ऑफ टूल स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज टू डिग द ग्राउंड। रेक्टेंगुलर शेप का जो है आगे ब्लेड लगा हुआ होता है एक रॉड में, उससे ग्राउंड को डिग किया जाता है। तो वो जिस तरह से चाहे अपना काम कर सकता है, स्पेड का यूज़ करता है अपने टूल का, और उसके जो क्लोथ होते हैं वो गंदे भी हो जाते हैं, उस पर डस्ट और मड लग जाता है। But nobody takes him to task. Nobody takes him to task is a phrase that means nobody was there who scold him or corrects him that you are doing this one wrong. This is not the method to do this. ऐसा कोई भी उसको जो है वो scold नहीं करता, कोई भी उसको जो है वो point out नहीं करता है, उसे correct नहीं करता। He does whatever things he want to do accordingly, और जैसा चाहता है वो क्या करता है वैसे अपने काम को फुलफिल करता है। ऐसा भी होता है मैनी टाइम्स देयर इज़ अ सन ऑन द हेड, तो बहुत बार वो गर्मी में बैठा हुआ होता है। समटाइम्स ही गेट्स वेट, कभी वो बारिश में भीग भी जाता है, बट नोबडी वॉज देयर टू पॉइंट हिम आउट और टू स्कोल्ड हिम। सो वॉट ही विश आई वर अ गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed. वो क्या कहता है कि काश मैं भी क्या होता, मैं चाहता हूँ कि मैं भी क्या होता एक गार्डनर होता, जो क्या करता अपनी मर्ज़ी से क्या करता, डिगिंग करता, जैसा मुझे करना है मैं वैसा करता। नोबडी विल स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। एंड इवन जब शाम में जब अंधेरा होने लगता, रात होने लगती, तो फिर क्या करती, मुझे अपनी मम्मी जो है वो डेली भेजती है ना रात में सोने के लिए, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जाता, गार्डनर रहता, थका हुआ होता, घर जाता, अपनी मर्ज़ी से खाना खाता और अपने हिसाब से जाकर सो जाता। मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। सो ही वॉन्टेड द लाइफ जस्ट लाइक अ गार्डनर। सो likewise here the child shares his feeling with us that what he actually feel, but he is not seeing the hardship what they were facing, कि जितनी भी बारिश रहे, कितनी भी गर्मी रहे, तो उनको अपना काम करना है। वो शेड में जाकर नहीं बैठ सकता कि नहीं मुझे गर्मी लग रही, मैं नहीं करूँगा, मैं भीग जाऊँगा तो मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आई विल फेल इल। सो वो ऐसा नहीं कर सकता। बट हियर द चाइल्ड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स, ही इज़ जस्ट सीइंग दैट इन दीज टास्क all the peoples are enjoying their freedom and he wants to enjoy the freedom. The next part of the poem we will continue in the next lecture, students. Thank you, students.